So complexation, by the name only you can understand that obviously some complex will form. And in the chemistry, how one complex can form? In the chemistry, how one complex can form? Obviously some bonding should be there, isn't it? Obviously some bonding should be there. So if I talking about the bonding can be of two type. It may be covalent bonding, or normal non-covalent or ionic. Okay, ionic bonding can be there in the basic sense. So covalent में क्या होता है? So obviously the sharing of electron. Okay, if A and B two compounds is there, so A will share the equal electron, B will share the equal electron, and they both actually take the electron pair. I mean they will actually contribute in the electron sharing. So that is the sharing of electron in covalent. But in ionic what happened, you know? Have any idea? Ionic bonding? দাদা ডোনেশন অফ ইলেকট্রন হয়, মানে একটা এলিমেন্ট অন্য একটা এলিমেন্টকে ইলেকট্রন Yes. ডোনেট করে দিয়ে বন্ড One করে। will donate, so obviously another will accept it. Okay. So donation of electron and accept of electron. So acceptor will be there. Donor will be there. And have you any kind of idea regarding the Lewis acid and Lewis base? Lewis acid and Lewis base definition. Lewis acid and Lewis base. দাদা যারা ইলেকট্রন লোন পেয়ার অ্যাকসেপ্ট করে তারা লুইস অ্যাসিড, আর যারা ইলেকট্রন লোন পেয়ার ডোনেট করে তারা Yes. লুইস বেস। So it is normal tricks from the acid से A है, तो acid मतलब acceptor. Okay, acceptor. But you have to remember that is electron. If you say proton, then the concept will be different. Proton acceptor, they will be base. Okay, so you have to little bit just see, or little bit vigilance when you are just following the two term. Acceptor, it is for electron. If it is electron acceptor, then it will be Lewis acid. But normal, the theory of proton donation and proton acceptor, the Arrhenius, all those theory. So then the proton donate, that is means the acid, and proton acceptor, that is means तुम्हारा जो base, ठीक है? So okay, Lewis acid मतलब already Rithophus has said it very correctly, that acid मतलब that they will accept the electron lone pair, and base they will obviously donate. So that is the basic idea. So generally in ionic में ये सारा complexation होता है, ठीक है ना, ये bonding के point of view से. And ionic they generally shown in the inorganic compound. Okay, so inorganic complex you will see the all those kind of Lewis acid, Lewis base concept. Okay, electron acceptor, electron donate, all those things. So that is the basic idea, and obviously different types of there. So as I have always tried to follow this thing, that if you see the GPAT syllabus, okay, physical pharmacy, so under the complexation two things is there. First one is the classification and the application, evaluation. So whether the complexation is actually made or not. Okay, so we have to evaluate the things like method for analysis. So those two things is there. Okay, so complex, if I go with the by definition, क्या होता है इसका definition? So this is a coordination compound. Okay, so here number of molecules or ions can be attached, so with a central atom. So that is the important. So obviously central atom will be there, and along with that some kind of it may be one or more than one associated attached ion or molecules should be there. Okay, तो उसका एक नेम है, क्या है नेम, मतलब सेंट्रल आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, और जो कंपाउंड व्हिच आर अटैच्ड टू द सेंट्रल आयन उसको क्या बोलते हैं, उसका सारा नेम है लिगेंड और बाइंड, मतलब डोनर, एक्सेप्टर, सेंट्रल एटम. So I will explain all those things, but just follow the definition. And that kind of complex can be formed by the electrocovalent or covalent. Also it can be by the ionic bonding also. Okay, so that is the thing, association of the two or more compounds or molecules to form a non-bonded entity. ठीक है ना, नॉन बॉन्डेड एंटिटी मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि फाइनली जो फॉर्म होगा तो उसके अंदर तुम देखोगे कि सिंगल कंपाउंड है, मतलब वो तुमको नहीं दिखाएगा कि अलग अलग कंपाउंड ऐसा कुछ, वो फाइनली यू विल सी लाइक सिंगल कंपाउंड. ओके, that is the concept. Like if I just give you one example that is very popular and common, cyclodextrin one type of inclusion compound, मतलब उसके अंदर ड्रग जाके इंट्रैप होता है, एस्पिरिन एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ताकि वो ड्रग का सॉल्युबिलिटी एनहांस हो जाए, बायोअवेलेबिलिटी एनहांस हो जाए,
but when the drug is entrapped inside the cage of cyclodextrin, that is the inclusion compound, you cannot separate out, or you can observe the two things differently. So that is the complete one entity. Okay, so that is the things, and this is the classification. Okay, so मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स एंड इंक्लूशन कंपाउंड. तो जो इंक्लूशन कंपाउंड मैंने ऑलरेडी जो बताया, चैनल टाइप, लेयर टाइप, क्लैथरेट्स, सो ये सारा जो एग्जाम्पल है इस बार एक बार याद करके रखो और नोट डाउन करो, क्योंकि मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल होता है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. लाइक चिलेट, वो हीमोग्लोबिन, ये सारा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम में 2024 में भी पूछे थे. हीमोग्लोबिन से चिलेशन, लिगेंड, ऑल दोस थिंग्स. ओके, डेंटिसिटी, ऑल दोस कॉन्सेप्ट. सो इसलिए इसका जो क्लासिफिकेशन है ये पहले अच्छे से लिखो कि अंडर द मेटल कॉम्प्लेक्सेस व्हाट आर द एग्जाम्पल. ठीक है ना. और मेटल कॉम्प्लेक्स का जो एग्जाम मतलब जो मेकानिज्म ऑफ एक्शन है टू मेक द कॉम्प्लेक्सेशन, वो क्या होता है, दैट इज द एक्सेप्टर डोनर कॉन्सेप्ट. ओके, सेंट्रल एटम विल बी देयर and some kind of electron donor will be there. Ligand, that is the ligand. So those are the complex, the example of metal complexes. So उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, इनऑर्गेनिक टाइप्स, चिलेट, ओलेफिन, एरोमेटिक टाइप. ठीक है ना. और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर के टाइप्स में क्या क्या आ रहा है, ड्रग, कैफीन कॉम्प्लेक्सेस, पॉलीमर, पिक्रिक एसिड टाइप, क्वीन हाइड्रोन टाइप, ऑल दोस थिंग्स. एंड इंक्लूजन के अंदर चैनल, लेयर, क्लैथरेट्स, मोनोमॉलिक्यूलर. देखो इतने सारे डिटेल्स डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, बट द थिंग्स इज दैट यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप. इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल क्या होता है, चिलेट का एग्जाम्पल क्या होता है, ओलेफिन का. तो एग्जाम्पल तुमको याद रखना जरूरी है. दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट. ओके, हैव यू रिटन इट क्लासिफिकेशन? देन आई विल जस्ट गो. सो पहला वाला जो ओके हो गया ना. ओके, लिखे नहीं, प्रॉब्लम नहीं. सो नाउ आई विल जस्ट डिस्कस द फर्स्ट वन, द मेटल कॉम्प्लेक्स. ओके, सो जस्ट आई विल गो वन बाय वन बिकॉज आई हैव टू just give you the example of each type. That is the important. I am trying to say it again and again. So metal complexes, that will be first. So metal complex में क्या होता है, देखो मैंने जो बताया था कि सेंट्रल एटम का एक नाम है और जो उसके साथ अटैच है उसका एक नाम है. सो दैट इज द नेम. द विच वन इज द सेंट्रल एटम, जनरली नोन बाय द substrate. Okay, and the compound or the ion or metal which are actually attached, okay, with the metal. So those are the ligand. ठीक है ना. So obviously central atom will be there, and along with that ligand will be attached, and finally they will form one complex. ठीक है ना. So inorganic complex के अंदर क्या आता है ना, the ligand provide only one site for binding with the metal and ligands bonded to each other, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी हो सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, वो सारा जो कंपाउंड है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो. जिसके जो डोनेट करेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज उसको गेन हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज. तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, और कोवेलेंट भी उसमें होता है. नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल. इसमें तुम्हारा एक कॉम्पाउंड है, कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड, CO, कोबाल्ट, क्लोरीन, NH3O5, एंड दैट इज ऑल्सो इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब अंडर द, मतलब इसको थर्ड ब्रैकेट भी बोलते हैं, और Cl2. ठीक है ना. सो ये वाला जो तुम्हारा कॉम्पाउंड है इसका तुम अच्छे से इसको फॉलोअप करोगे तो तुम देख पाओगे कि इधर कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट, सो दैट इज द सेंट्रल एटम. गॉट माय पॉइंट. कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट इज द सेंट्रल एटम है. एंड NH3+, ये मतलब ऐसा तुम सोचो कि 1 2 3 4 5. ओके, सो लाइक दैट NH3 विल बी अटैच, NH3 करके ऐसा अटैच होगा. ठीक है ना. NH3 सारे में NH3. सो कोबाल्ट इज द सबस्ट्रेट और सेंट्रल एटम, and ammonia or NH3, these are the ligand, and NH3 will provide just one site for bind.
वन साइड फॉर बाइंड, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग्स एंड नाउ यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स दैट Cl2, ये जो Cl2 है इसका रोल क्या है, इसका रोल ओनली गिव द स्टेबिलिटी, मतलब इसको न्यूट्रल करना होगा तुमको, ऑब्वियसली दैट स्फीयर हैव सम काइंड ऑफ चार्ज, तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए आयोनाइजेशन स्फीयर में क्लोरीन रहता है, बट ये जो Cl2 है ना दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्प्लेक्सेशन। इसका रोल क्या है आयोनाइजेशन स्फीयर का, इट विल जस्ट गिव सम द स्टेबिलिटी, मतलब न्यूट्रल करने के लिए यूज होता है। तो कॉम्प्लेक्स ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो पार्टिसिपेट हो रहा है, सो दैट ओनली पार्टिसिपेट इन द, ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो है ये ओनली पार्टिसिपेट इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ओके। सबस्ट्रेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, सो टू आर देयर, सो आयोनाइजेशन स्फीयर। দাদা এটা আরেকবার বলে দাও না। হ্যাঁ বল বলছি দাদা এটা আরেকবার বলে দাও, তোমার ভয়েসটা ব্রেক করলে শুনতে পেলাম না। ওকে যেটা আমি বলছি যে কোঅর্ডিনেশন স্ফিয়ার অনলি রেসপন্সিবল ফর দ্য কমপ্লেক্স ফর্মেশন, আয়োনাইজেশন স্ফিয়ার দে ওন্ট পার্টিসিপেট ইন দ্য কমপ্লেক্স ফর্মেশন, ইট উইল অনলি গিভ দ্য স্টেবিলিটি অর নিউট্রালিটি, ঠিক আছে। আয়োনাইজেশন স্ফিয়ার অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন স্ফিয়ার, এটা হচ্ছে মেন কনসেপ্টটা, আয়োনাইজেশন স্ফিয়ার অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন স্ফিয়ার, ঠিক আছে। আরও एग्जाम्पल আছে, यू विल सी वन बाई वन। अच्छा ये इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो थोड़ा, इधर पे एक एग्जाम्पल है कि कैसे बना इसको एक्चुअली तुम बना सकते हो, ठीक है ना। ये देखो इसमें कि एक स्ट्रक्चर है CONH3 होल 6 और इसका चार्ज क्या है 3+, ठीक है ना। सो दैट इज इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो उसका नेट चार्ज कितना है +3, समझ में आ रहा है कि नहीं है, बोलो मेरा बात, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ में आया है कि ये जो पूरा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसका नेट चार्ज क्या है +3, बट जो +3 को तुमको न्यूट्रल करना होगा, तो तुम हो सकता है कि तुम Cl3 और Br3 ऐसे कुछ दे दिए इसके साथ आयोनाइजेशन स्फीयर में, ताकि +3 और -3 वो नालीफाई होके न्यूट्रल चार्ज आ जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है मेरा बात, हैव यू अंडरस्टूड? হ্যাঁ দাদা। সবাই বুঝতে পেরেছি তো বাস একটা खुशबू सबको तुमको यह समझ में आया कि आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट, आयोनाइजेशन स्फीयर में क्यों वो मॉलिक्यूल्स रहता है, उसका क्या रोल है, ये समझ में आया कि नहीं है, बोलो मेरे को। हाँ दादा। हाँ कि कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उसमें तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बन गया लिगेंड सबस्ट्रेट, बट उसका एक नेट चार्ज रहेगा, हो सकता है +3, हो सकता है +2, बट वो +3 +2 ऐसा रहेगा, वो तो स्टेबल नहीं है ना, तो उसको हमको न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। तो जितने चार्ज होगा, सपोज -3 -2 भी हो सकता है, बट जो भी होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यू हैव टू गिव इन द आयोनाइजेशन स्फीयर सो दैट इट विल बिकम न्यूट्रल। तो यही था, मतलब इधर पे तुम लोग देख सकते हो कि Cl2 मतलब एक्चुअली -2 चार्ज, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का +2 था, तो +2 -2 नालीफाई होकर पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर में मॉलिक्यूल को प्लेस, मतलब एक्चुअली फॉर्मेशन हम लोग नहीं देते हैं, ये एक्चुअली इसका सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऐसे ही होता है जो कॉम्प्लेक्स का, ठीक है ना। ओके, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। एंड नाउ सी इधर पे एक्चुअली उन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किए, मतलब थोड़ा इसका स्ट्रक्चर कि क्यों हम बोल रहे हैं कि उसमें +3 रहेगा, इसको तो तुमको समझना पड़ेगा +3 क्यों आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको तुमको समझने के लिए थोड़ा ये वाला तुम देखो अच्छे से कि जनरली पीरियोडिक टेबल में आर्गन के साथ, मतलब जो हायर देन आर्गन तो जो होता है उसका, अच्छा आर्गन का एटॉमिक नंबर, एनीवन नो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन? 18 हाँ बोल sir 18 okay তাহলে you can see here that they have write it like such a way so that 3d7 that is the orbital d4s, तो 7 to 9 9 plus 18, so 9 plus 18 कोबाल्ट का इक्विवेलेंट ही हो जाएगा, तुम देख सकते हो, ठीक है ना। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, इस लिखने का तरीका है ऐसे ही तो हम लोग लिखते हैं ना, मतलब हाइब्रिडेशन स्टेट और तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बोलते हैं ऐसे हम लोग लिखते हैं। आर्गन से भी लिखा जाता है कभी कभी उसको, आई थिंक वो तुम्हारा कोबाल्ट और समटाइम्स
ब्रोमीन, ये सारे चीज़ को देके ही लिखते हैं। बट जो कोबाल्ट से तुम ऑब्वियसली जब तुम कोबाल्ट से उसको रिप्रेजेंट करोगे तो द एटॉमिक नंबर शुड बी हायर देन 18, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मतलब कॉम्पाउंड जो होगा, लाइक हियर वी आर एक्चुअली ट्राई टू शो यू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता है किसी को? व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट? इधर पे लिखा है, तुम एक आइडिया करके ही तो बता सकते हो ना। मैं वही तो आप तुमको बताया। দাদা 27 হবে তো, আর্গনের 18 আর 9 27। दैट ओनली आई जस्ट ट्राइंग टू से कि ये लिखने का कॉन्फ़िगरेशन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। क्योंकि ये आर्गन में जो 18 है उसको भी तो तुमको 1:2, 2:2, 3d5 ऐसे करके तो तुमको बहुत सारे मतलब हो जाएगा ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है कि आर्गन तक तुम लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद तुम बाकी जो है उसको ऑर्बिटल में तुम डाल दियो, ऐसे तुम लिखते हो, ठीक है ना। तो वही इधर पे भी लिखा है, आर्गन का हो गया तुम्हारा 18, उसके बाद कोबाल्ट का 27 है, तो द लेफ्ट 9 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लेफ्ट। सो 3d ऑर्बिटल में 7 दिया हो और 4s में 2, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो इट कैन ऑक्यूपाई 2, ठीक है ना। सो उसके ही रिप्रेजेंटेशन है। तो उसके बाद ये जो तुम्हारा +3 है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन 3 डेफिसिट हो गया उधर पे। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मतलब ये जो आर्गन 3d7 4s2, तो तुम देख सकते हो क्या कैसे हम लोग लिखे इसको। ये 4 मतलब पहले क्या था इसमें 1 2 3 5 डी ऑर्बिटल में तो 5 होता है तुम्हारा सेल। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इधर से एक्चुअली एक इधर पे होता, मतलब मैं पहला वाला जो सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद 4s2 में तुम्हारा ऐसा है, ठीक है ना। बट नाउ द चार्ज इज +3। तो +3 मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू द रूल। सो इधर से तुम्हारा निकल जाएगा, 4s से 2 निकल जाएगा और तुम्हारा डी और डी ऑर्बिटल से एक निकल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही होगा ना, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? तुम बोलो। कोबाल्ट से जब 3 इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा, डिफिसिट हो जाएगा, तब उसका क्या, यही तो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 4s0 4p0, मतलब 4s ऑर्बिटल में कुछ नहीं रहेगा, होगा ना। हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? ये कुछ कन्फ्यूजन है? ये तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, समझ में आया कि नहीं? बोलो ना সেটা ঠিক আছে। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम सेकंड ईयर थर्ड ईयर आल्सो जा खुशबू एकता समझ में आया कि नहीं? ये बोलो चीज़, मतलब ए वाला जो 3d6 4s0 4p0, दिस इज आफ्टर द 3 इलेक्ट्रॉन गो आउट फ्रॉम द कोबाल्ट। कोबाल्ट जब +3 हो गया, कोबाल्ट +3 मतलब क्या है, उसका एटॉमिक नंबर तब क्या होगा? खुशबू प्रेजेंट हो क्लास में? कोबाल्ट जब +3 हो रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर कितने में आ जाएगा बोलो? खुशबू प्रेजेंट हो कि नहीं है क्लास में? और क्या, मैं तो देखा था तुम ज्वाइन किए थे क्लास में। ओके, আচ্ছা করিনা বুঝতে পারছিস তুই এটা? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। +3 হলে অ্যাটমিক নাম্বারটা কত হবে? স্যার ওই তো 3d6 এবার 4s2 তো হবে না। অ্যাটমিক নাম্বারটা আমাকে বল, অ্যাটমিক নাম্বারটা কত হবে এটা আমাকে। আর্গন 18 আর 18 24 হবে। हाँ 24, दैट इज द करेक्ट वन। सो 24 पहला था 27, तो 3 इलेक्ट्रॉन इज आउट, सो 24। ओके, सो नाउ सी आर्गन का हम लोग क्या बोले 18 तो हो गया, 18 हो गया। तो उसके बाद 6 ओनली रिमेन। तो जो 6 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, दे विल जस्ट मेक देयर प्लेस इन द 3d ऑर्बिटल। सो दैट इज द बेसिक थिंग्स ना इन केमिस्ट्री। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस। क्या कैसे टेक प्लेस होगा कि अकॉर्डिंग टू द रूल कि तुम्हारा एंटी क्लॉक एंड क्लॉक रोटेशन तुमको मेंटेन करना पड़े, न्यूट्रल करने के लिए जो ईच सेल उसको तुमको स्टेबल और न्यूट्रल करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का ऐसे ही तुम्हारा फॉर्मेशन होगा, एक एंटी क्लॉक एक क्लॉक वाइज, प्लस एंड माइनस। तो वो हो गया 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे तुम्हारा वो मतलब एक आके स्टेबल हो गया। तो रेस्ट ऑफ द ऑर्बिटल दे विल जस्ट मार्ज एंड हाइब्रिडाइज टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो तुम देखो इधर पे तुम्हारा डी ऑर्बिटल में 5 तुम्हारा ऑर्बिटल था, ठीक है ना। तो उधर से तुम्हारा 2 आ गया और इधर से तुम्हारा 4, 4s का जो तुम्हारा है 4s और 4p का 4 आ गया, ठीक है ना। तो आके वो पूरा फॉर्म करेगा क्या D2sp3,
D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड. एक्चुअली दिस थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट पर्पस, यू नो, सम कॉम्प्लेक्स विल बी देयर, ठीक है ना. तुमको एक कॉम्प्लेक्स बुला दिया, मतलब बोल दिया जाएगा, उसके बाद तुमको समझना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है. सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना. तो तुम स्ट्रक्चर कैसे पता उसको करोगे. सो यू हैव टू नो द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ठीक है ना. सो ये तुम्हारा जो कंपाउंड है, सो दिस इज D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड. सो D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो होता है तो वो ऑक्टाहेड्रल. तो ये जो ऑक्टाहेड्रल हो रहा है, इसको समझने के लिए तुमको उसका हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थोड़ा समझना होगा. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना. तो और ये तो तुम केमिस्ट्री में बार बार पढ़े चुके हो, आकाश सर ने ऑलरेडी तुमको डिस्कस किया है. सो बट तुम एक बार फिर से तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. कि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर, मतलब उसका जियोमेट्री और शेप और उसका कॉन्फ़िगरेशन, सो इस पे होगा तो लीनियर. एक बार लिख लो, और कुछ नहीं, मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना. तो एग्जाम में ऐसे ही आएगा, तुमको बोल दिया जाएगा कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ PF3 और जो बॉन्ड जियोमेट्री ऑफ PF3, ठीक है ना. तो उसके बाद तुमको समझना होगा कि उसका क्या होगा, DSP3 और बाई पिरामिडल. तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट तुमको ज़रूरी है इधर पे, ठीक है. बट नॉर्मल सेंस से तुम बताओगे, मतलब सिविक्स में तो इतना जरूरी नहीं है ऑब्वियसली, बट द नॉर्मल थिंग्स, ये जो CO NH3, ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर, ये सारा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. तो इसके थोड़ा, इसलिए थोड़ा तुमको स्ट्रक्चर याद रखना होगा, ठीक है ना. बेसिक जो स्ट्रक्चर है, CH4 तुम्हारा मीथेन, इसके बाद तुम्हारा बोरोन ट्राइक्लोराइड जो है, ऑक्सीजन, ये सारा चीज़, ठीक है ना. ट्राइगोनल थोड़ा याद में इसको रखो, और कुछ नहीं. लिख लिया ना ये चीज़. हेलो, हाँ दादा. ये जो बोरोन ट्राइक्लोराइड होता है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कभी कभी, क्योंकि इसका यूज़ तुम्हारा सेमीकंडक्टर के रूप से भी यूज़ होता है. सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर और टॉक्सिक भी होता है तुम्हारा, थोड़ा इस टॉक्सिक, बट जनरली वी कैन यूज़ इन द सेमीकंडक्टर. तो इसलिए बोरोन ट्राइक्लोराइड भी यूज़, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है. तो इसका ऑर्बिटल का sp2 और बॉन्ड जियोमेट्री ट्राइगोनल थोड़ा याद रखो, ठीक है. इसका 1 is 6 वाला इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, और ये मीथेन, ये तीनों एटलीस्ट याद रखो, ठीक है ना. सजेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, बट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको तो सारे याद रखना होगा. बट फ्रॉम सिविक्स एंड ऑल दोस थिंग्स आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके. अच्छा, इसके बाद एक चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर एक होता है. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ आइडिया है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कुछ आइडिया है? बोलो. কতগুলো কোঅর্ডিনেট বন্ড তৈরি হচ্ছে? বন্ড, দেখ বন্ড আমরা এই জন্যই বলতে পারবো না, কারণ কখনো কখনো একটা লিগ্যান্ডই না ওর বাইডেন্টেড হয়ে যায়, মানে দুটোভাবে বন্ড করছে, তিনটেভাবে. বাট দ্য এক্সাক্ট ডেফিনেশন ইজ দ্যাট, মানে পার্সিয়ালি কারেক্ট, তুই যেটা বলছিস সেটা পুরোপুরি ভুল না, বাট দ্য এক্সাক্ট ডেফিনেশন ইজ দ্যাট দ্য নাম্বার অফ অ্যাটমস অফ দ্য লিগ্যান্ড দ্যাট আর ডিরেক্টলি बाउंड टू द सेंट्रल एटम, ठीक है ना. सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगेंड, मतलब एक लिगेंड है तुम्हारा, तो उसका कितना एटम है वो जो डायरेक्टली तुम्हारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इट कैन बी आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना. सो दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगेंड दैट आर डायरेक्टली बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन बाय द कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इज नोन बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना. तो हम लोग देखेंगे मतलब कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल भी मैं इस पर लिखा हूँ. तुम्हारा CN का फॉर्मूला है डेंटिसिटी इंटू द नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है ना. डेंटिसिटी भी तुमको पता करना है, मतलब दैट द कॉन्सेप्ट इज दैट नंबर ऑफ लिगेंड इंटू द डेंटिसिटी, क्योंकि डेंटिसिटी मतलब ऐसा चीज़ है ना, लिगेंड तुम्हारा एक ही है. सपोज मैं जो बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा एक सेंट्रल एटम है और लिगेंड है, ligand 1, ligand 2, ligand 3, okay. But so normally you will tell that is the 3 coordination number, but that is not true, क्योंकि एक ligand का ही डेंटिसिटी मतलब नंबर ऑफ बाउंडिंग साइट कैन बी 3, कैन बी 2, कैन बी 1 also, so that will depend. So that's why the coordination number formula is that number of ligand इंटू डेंटिसिटी. तो तुमको डेंटिसिटी भी उसको कंसिडर करना होता है, ठीक है ना. सो व्हाट इज डेंटिसिटी, उसका भी डेफिनेशन. अच्छा, ये सारी चीज़ तुम लिख लो, मैं इसलिए इसको हैंड रिटन नोट भी दिया था, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, ये नहीं होगा, इसमें थोड़ा डेफिनेशन भी याद है.
सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ना, जी नंबर ऑफ लिगेंड दैट आर डायरेक्टली बाउंड टू द सेंट्रल मेटल। सो ये तीनों लाइन जस्ट याद रखो, नंबर ऑफ एटम दैट इज द वन पॉइंट दैट आर डायरेक्टली बाउंड टू द सेंट्रल एटम, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद डेंटिसिटी क्या है, जो डेंटिसिटी मैं बता रहा था कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग साइट ऑफ अ लिगेंड, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। सो लिगेंड तुम्हारा 3 है प्रेजेंट है, बट हो सकता है उसका कोऑर्डिनेशन साइट 3x3 मतलब 3x3 भी हो सकता है, मतलब 3 तुम्हारा लिगेंड प्रेजेंट है, बट इफ द लिगेंड इज ट्राइडेंटेड सो 3x3 = 9 होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन साइट। इफ द लिगेंड इज बाइडेंटेड सो 2x3 मतलब 6 होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन साइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। सो इट इज़ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स ऑफ अ लिगेंड। लिगेंड जो भी हो उसका कोऑर्डिनेशन साइट कितना है उसको तुमको समझना जरूरी है। एक एग्जाम्पल मैं इधर पे लिखा हूँ, और ये तुम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड वो भी तुम बोल सकते हो, ठीक है ना। बट एग्जाम्पल थोड़ा देखो इधर पे क्या है, एमोनिया है। एमोनिया वो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक मेटल को एक मेटल दैट इज एमिट मेटल, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली एमोनिया विल बी व्हाट, लुईस एसिड और लुईस बेस, लुईस एसिड और लुईस बेस, बेस दादा, लुईस बेस। okay okay now you see ammonia has one lone pair to donate, so इसका डेंटिसिटी होगा 1। समझ में आया कि नहीं बोलो मेरे बात, इसका डेंटिसिटी होगा 1, बट एक कंपाउंड CH3 CH2 NH2 NH2 एक कंपाउंड ऐसा तुम्हारा है, ठीक है ना। तो दे एक्चुअली डोनेट सेम द मेटल को ही डोनेट कर रहा है, पर उसमें अमोनिया का 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है ना, NH2। समझ में आया कि नहीं बोलो। तो इसलिए उसका डेंटिसिटी हो जाएगा 2। तो एमिनो ग्रुप और एमोनिया इट कैन बी वन मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, वेदर इट डिलीवर और डोनेट 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर और समथिंग एल्स, ओके। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट, कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है और कितना उसमें कोऑर्डिनेटिंग साइट है, दैट इज द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। सो इफ द MCQ इज कमिंग लाइक दैट वे, डेंटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, सबस्ट्रेट, लिगेंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नन ऑफ द अबव। सो द आंसर विल बी लिगेंड का क्या प्रॉपर्टी है, वो लिगेंड कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, उसमें कितना कोऑर्डिनेटिंग साइट्स है, दैट विल ओनली डिपिक्ट बाय द डेंटिसिटी, ओके। अच्छा, इसके बाद कुछ एग्जांपल मैंने लिखा था कि मोनोडेंटेड NH3 मतलब एमोनिया, और NH2 को तो हम लोग एमिनो ग्रुप बोलते हैं, एमिनो, इट इज़ नॉट एमोनिया ऑल्दो इट इज़ एमिनो ग्रुप, एमिनो, ओके। और बाइडेंटेड उसमें तुम्हारा ऑक्सालेटो हो सकते हैं, ऑक्सालेटो, और डाइन, ट्राइडेंटेड मतलब तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड 2 ऐसे करके कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, तो डाइन में भी तुम्हारा ट्राइडेंटेड प्रेजेंट होता है। पॉलीडेंटेड उसका एग्जांपल मेरे को उस टाइम पता नहीं था, बट मैं एक बार फिर से तुमको पता लग के ना एक बार बोल दूंगा, ठीक है ना। ये डेंटिसिटी भी थोड़ा तुमको याद रखना होता है। तो एग्जांपल अभी के लिए ये लिख लो, बाइडेंटेड तुम्हारा ऑक्सालेटो, ओके, एंड डाइन। और उसके बाद एग्जांपल मैंने फिर से लिखा है कि इसमें EN मतलब इथिलीन डायमीन, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिखा था शॉर्ट में, इथिलीन डायमीन, ओके। दैट इज द कंपाउंड इथिलीन डायमीन, ओके। समझ में आया कि नहीं बोला, हेलो हेलो। হ্যাঁ দাদা, বলছি দাদা হ্যাঁ দাদা। বলছি ইথিলিন ডায়ামিনটা তো বাইডেন্টেড হবে দাদা। হ্যাঁ, কি বলছিস আরো ভালো করে বল, শুনতে পাইনি। বলছি যে দাদা ইথিলিন ডায়ামিনটা তো বাইডেন্টেড হবে তাহলে। হ্যাঁ, বাইডেন্টিটি তো লেখাই আছে, আবার কি? হ্যাঁ, এই EN বললাম না, EN ইজ দ্য শর্ট ফর্ম, EN ইজ দ্য শর্ট ফর্ম অফ ইথিলিন डायमीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम देखो एक मतलब फॉर्मूला, अच्छा ये फॉर्मूला लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर, द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, ओके।
तो नंबर ऑफ लिगेंड भी तुमको कंसिडर करना होगा। उसके बाद वो लिगेंड में कितना तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग साइट है और कितना वो लिगेंड डोनेट कर रहा है लोन पेयर, वो भी तुमको कंसिडर करना है, दैट इज़ द डेंसिटी। तो एग्जाम्पल एक लिखा है कि इसमें निकल और कोबाल्ट तुम्हारा 4 है। इसमें देखो, इसमें कोबाल्ट हो गया तुम्हारा लिगेंड। इट इज़ नॉट ओनली आई मीन एप्लीकेबल द कोबाल्ट शुड बी द सबस्ट्रेट और सेंट्रल एटम, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो जो भी हो सकते हैं, बट तुमको फॉलो करना होगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है उसको तुमको समझना जरूरी है, कि वो तुम समझ जाओगे कि जिसके साथ ये फर्स्ट पैकेट में तुम्हारा नंबरिंग होगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी द लिगेंड, ठीक है ना, जनरली। ओके, एंड मतलब मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल एटम डिटरमाइन करने का और भी तरीका होता है सेंट्रल एटम फाइंड आउट करने के लिए, मतलब हाइब्रिडेशन स्टेट में। बट नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म मतलब फॉर्मूला में बता रहा हूँ कि तुम एक चीज़ देखो कि तुम्हारा जिसके अंदर फर्स्ट पैकेट के लिए फर्स्ट पैकेट के बाद प्रीफिक्स में नंबरिंग होगा, मतलब उतना नंबर लिगेंड उसमें प्रेजेंट है, सो ऑब्वियसली दैट इज़ द लिगेंड। और पहला जो लिखा होगा वो तुम्हारा सेंट्रल एटम, समझ में आया ना? तो देखो इधर पे वही है तुम्हारा कि सेंट्रल एटम निकल और तुम्हारा ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का नाम किसी को पता है? सारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम मतलब जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऑल्दो, बट बेसिक जो कंपाउंड है उसका नाम तुम थोड़ा याद रख सकते हो, ठीक है ना? तो इसका कुछ मतलब एक आइडिया है, मतलब क्या हो सकता है। आईयूपीएक नेम तुम नहीं बता सकते हो, बट एटलीस्ट आइडिया निकल और तुम्हारा 4 तुम्हारा क्या बोलते हैं कोबाल्ट है। নিকেল টেট্রা কোবাল্টেট এমনি কিছু। হ্যাঁ, টেট্রা কখনো কখনো না কোবাল্ট, দ্য कोबाल्ट ना समटाइम्स इट कैन बी कॉल्ड बाय द कार्बोनाइल ऑल्सो। सो टेट्रा कार्बोनाइल निकल भी तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है ना, टेट्रा कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे तुम्हारा जो कंपाउंड होगा उसका नेम प्रॉपर तो तुम आईयूपीएक नेम से तुमको पता लग सकते हो, वो तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म से तुम डिफरेंट होगा, बट बेसिक आइडिया टेट्रा कोबाल्ट निकल भी तुम बोल सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि सेंट्रल तुम्हारा जो नंबर है कोऑर्डिनेशन नंबर, कैसे वो फाइंड आउट कर रहा है कि कोबाल्ट तुम्हारा 4 है, दैट इज़ द नंबर ऑफ लिगेंड, और कोबाल्ट का इसमें डेंटिसिटी 1 है क्योंकि ये उसमें लोन पेयर एक ही है, समझ में आ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। बट इसमें तुम देखो एमोनिया वो भी तुम्हारा एक ही मोनोडेंटेड है, ठीक है, मोनोडेंटेड है। तो क्या है देखो 4 तुम्हारा नंबर ऑफ लिगेंड और इंटू 1 4, समझ में आया कि नहीं बोलो। और SO4 ये तुम्हारा कि कौन सा मतलब स्फीयर में है SO4? আয়োনাইজেশন স্ফিয়ার। আচ্ছা মন্দিরা আর তোমার এই কারিনা তোরা বুঝতে পারছিস SO4টা কি এখানে? হ্যাঁ দাদা, SO4 এর এখানে রোলটা কি এখানে বল, সালফেট আয়নের। এটা স্টেবল করার জন্য রাখা হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ তাহলে স্টেবিলিটি। তাহলে একটা বেসিক আইডিয়া বল যে আমার কোঅর্ডিনেশন যে স্ফিয়ার ওটার চার্জ কি ছিল। এখানে আমরা যদি সালফেট কাউন্টার আয়ন দিয়ে ইফ উই জাস্ট ট্রাই টু স্টেবল ইট, সো হোয়াট ইজ দ্য চার্জ অফ দ্য কোঅর্ডিনেশন स्फीयर? +2। +2। वेरी गुड, क्योंकि सल्फेट का तुम्हारा चार्ज -2 होता है, तो +2 -2 यस, ओके। तो सल्फेट इधर पे कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो काउंटर आयन और आयोनेशन आयन वो जो भी तुम बोल सकते हो वो नेवर पार्ट इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ओके। अच्छा तो देखो उसमें भी सेम ही है, 4 हो गया। अच्छा इसके बाद देखो कोबाल्ट उसके साथ इथिल डायमीन 2 और वाटर, मतलब हाइड्रो वाटर भी तुम्हारा 2 है। तो इसमें तुम्हारा लिगेंड 2 ही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिगेंड तुम्हारा इसमें 2 है, बट उसका फॉर्मूला तुम कैसे लिखोगे? Cl3 तो वो तो तुम्हारा काउंटर आयन है, दैट इज़ डिफरेंट। तो देखो इथिलीन डायमीन, ठीक है, इथिलीन डायमीन तो वो तुम्हारा 2 है, हो गया। और उसका तुम्हारा डेंटिसिटी कितना है इथिलीन डायमीन का? इथिलीन डायमीन का डेंटिसिटी कितना है बोलो? দাদা 2 হবে। তাহলে ওটা হলো 2 + 2 হলো প্লাস এগেন ইউ হ্যাভ টু শো ওয়ান থিং ইউ ক্যান রাইট डाउन, दैट फॉर्मूला इज एक्चुअली समेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। मतलब तुमको एक एक इंडिविजुअल जितना तुम्हारा लिगेंड का डिफरेंट पैटर्न होगा तो तुमको ऐसे ही कंसिडर करना होगा। तो उसके बाद एक फिर से तुम्हारा H2 है, H2 का डेंटिसिटी जनरली 1, ठीक है ना, H2
क्योंकि उसमें लोन पेयर और तुम्हारा कोऑर्डिनेशन साइड एक ही होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं वो? तो टोटल तुम्हारा जो आ जाएगा 6, ये जो पूरा तुम्हारा जो कंपाउंड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6, ठीक है। सो वाटर इज अ मोनोडेंटेड, ठीक है ना, वाटर, ये भी लिख लो, वाटर इज अ मोनोडेंटेड। क्योंकि इसमें क्या, अच्छा एक क्यों मोनोडेंटेड है, कि कुछ आइडिया है तुमको? आइडिया है वाई वाटर इज मोनोडेंटेड? कुछ कॉन्सेप्ट तुम समझ लो, ऐसा नहीं कि जस्ट रट्टा मार के कुछ फायदा, बट कुछ आइडिया है कि वाई इट इज मोनोडेंटेड? অঙ্কনা, এটা মোনোডেন্টেড কেন, কোনো আইডিয়া আছে? স্যার যেহেতু ওটা শুধু অক্সিজেন মানে ডোনেটিং এখন তার জন্য। ভেরি গুড, ভেরি গুড, বিকজ হেয়ার অনলি অক্সিজেন উইল রেসপন্সিবল ফর দ্য ডোনেশন অফ ওয়ান লোন পেয়ার, ওয়ান মতলব ইলেকট্রন লোন পেয়ার, ঠিক আছে না। হাইড্রোজেন তো ওখানে কোনো পার্টিসিপেট করছে না ডোনেশনের জন্য, আর অক্সিজেন থেকে একটাই লোন পেয়ার দে উইল ডোনেট অ্যান্ড ফর্ম ওয়ান কমপ্লেক্স উইথ দ্য মেটাল আয়ন, ओके। सो दैट्स वाई मतलब हाइड्रोजन इज द वाटर इज द मोनोडेंटेड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल था, क्योंकि ये भी एमसीक्यू के रूप से आ सकता है, ठीक है ना, क्यों हो रहा है ऐसा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम देखो ये सारा चीज़ ना तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुमको समझ में आए। ऐसा कुछ ट्रिक्स मैं नहीं बताऊंगा कि तुमको सारी, ये मेरे हिसाब से तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। क्यों प्रैक्टिस करना है कि वो जो मोनोडेंटेड बाइडेंटेड उसका एक चार्ट है, वो चार्ट है। अच्छा मैं एक बार लिख लेता हूँ, तुमको शेयर कर दूंगा डेंटिसिटी का चार्ट, वेट, डेंटिसिटी चार्ट, बट वो डेंटिसिटी चार्ट, হ্যাঁ বল। দাদা বলছি অক্সিজেনের তো দুটো লোন পেয়ার থাকে, তাহলে এটা মোনোডেন্টেড কেন হচ্ছে? আচ্ছা ভয়েসটা আমি শুনতে পাচ্ছি না, আরো ভালো করে বলতো, বল বল। দাদা বলছি যে অক্সিজেনের তো দুটো লোন পেয়ার থাকে না, তাহলে সেইভাবে দেখতে গেলে তো বাইডেন্টেড হওয়া তো। না দুটো থাকলে তো লোন, ও তো একটা নিজে একটা তো থাকবে ওর কাছে, সবটাই তো ডোনেট করবে না। তুই যদি কোনো মেটাল আইটেমের সাথে ওয়াটারের দেখিস, তুই দেখবি ওখানে ও একটাই সিঙ্গেল লোন পেয়ারই ডোনেট করবে, একটা হচ্ছে লোন পেয়ার থাকবে, ঠিক আছে, যেটা ডোনেট করবে, আর একটা লোন পেয়ার করবে না, ওর কাছে থাকবে ওটা। দেখিস তুই, মানে আমার এই মোমেন্টে আমার কাছে এক্সাম্পল কোনো নেই যে হাইড্রোজেন ওয়াটারের সাথে মেটাল কমপ্লেক্সের, বাট তুই একবার সার্চ করে দেখিস ওটা না, আদারওয়াইজ আই ক্যান শেয়ার, তুই মেটাল কমপ্লেক্স দেখবি কেমন করে হচ্ছে ওটা। একটা লোন পেয়ার ওর কাছে থাকবে, ও ডোনেট করবে একটাই, কথা বুঝলি? হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে। হ্যাঁ দাদা। মানে পিকচারটা আমি যদি করি এইভাবে, মানে একটা মেটাল আছে এরকমই, এটা এরকমই হবে, তুই একদম তুই দেখে নিস, এটা অক্সিজেন হাইড্রোজেন, ওকে। সো इसमें पार्शियल नेगेटिव, partial positive, so only one lone pair will just participate, এরকমই হবে, স্লাইটলি নেগেটিভ যেটা অক্সিজেন তোর চার্জ সেটাই তোমার ওখানে পার্টিসিপেট করবে। এক্সাম্পল আছে অনেকে, এরকম তোমার কপারের সাথে এরকম H2O হোল 6, এরকম অনেক আছে এক্সাম্পল, দেখিস একবার নিজে থেকে, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে রোল, মানে এটা অনলি ডোনেট করবে ও একটাই লোন পেয়ার, ওয়াটারটা, বুঝতে পেরেছিস তো? হ্যাঁ दादा বুঝতে পারলাম। ओके। सो डेंटिसिटी तुमको याद रखना होगा कि किसका डेंटिसिटी कितना है, अदरवाइज तो यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेशन से तुमको एमसीक्यू में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकते हैं, तो तब तुमको क्या जस्ट नंबर ऑफ लिगेंड फाइंड आउट करना होगा। बट किधर प्रॉब्लम होगा, डेंटिसिटी में। डेंटिसिटी तुमको नहीं पता होगा तो तुम तो सारे को मतलब सारे कंपाउंड का डेंटिसिटी एक करके तुम आ जाएगा, बट ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए डेंटिसिटी को थोड़ा याद रखना जरूरी है, बट नॉर्मल ये तुम देख सकते हो, इधर पे भी 1 है, तो BNH3 ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया 4 और तुम्हारा 6, ठीक है ना, वही जो डिस्कस मैंने किया। अच्छा इधर पे जो फोर्स वगैरह है ना, ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं कर दिया, बट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के लिए भी ये सारे फोर्स मतलब रिस्पॉन्सिबल है। ये जो वैंडरवाल फोर्स, वीक इंटरेक्टिव जो फोर्स है ना, वीक इंटरेक्टिव फोर्स, तो वैंडरवाल फोर्स की सम फोर्स डिवाई फोर्स ऑलरेडी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो इधर पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। सो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू रिमेंबर, सो टिल नाउ द summary I can say you, first one is that
शेप और साइज। शेप मतलब जो बॉन्ड जियोमेट्री और शेप, तो यू हैव टू रिमेंबर द हाइब्रिडाइजेशन। और सेकेंड वन इज द डेंटिसिटी। डेंटिसिटी तुमको याद रखना चाहिए, क्योंकि विदाउट डेंटिसिटी यू कैन नॉट फाइंड आउट द पोटेंशियल नंबर, ठीक है ना। ये दो चीज़ थोड़ा याद में रखो। अच्छा, नाउ आई जस्ट गो फर्स्ट बिकॉज ओनली यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट के रूप से दो ही इंपॉर्टेंट था इधर पे, ठीक है ना। और तो अभी तो सारे तुम्हारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जस्ट ओके। एग्जाम्पल तो क्या क्या है देख लो इधर पे। इनऑर्गेनिक तुम्हारा जो कंपाउंड है, मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 टाइप्स होता है, इनऑर्गेनिक, चिलेट, ओलेफिन, एरोमेटिक, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक का जो एग्जाम्पल है, इनऑर्गेनिक का तुम ये सारा एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो। कोबाल्ट, ये देखो जो कोबाल्ट है, कॉपर है, सारा तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो जिधर पे तुम्हारा सेंट्रल एटम इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो दोज आर द इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आया कि नहीं। फेरस हो सकते हैं, नॉर्मल फेरस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जेगुलो दे विल जस्ट फॉर्म द इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस। आई मीन इफ दे आर एक्ट लाइक सेंट्रल एटम और द सबस्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा एग्जाम्पल है चिलेट। तो चिलेट है तुम्हारा EDTA। अच्छा, EDTA डेंटिसिटी जाना আছে কার EDTA হোয়াট ইজ দ্য ডেন্টিসিটি অফ EDTA, মানে EDTA তে কীরমভাবে এটা হয়, কমপ্লেক্সটা ফর্ম হয়। এটা খুবই একটা মানে পপুলার এক্সাম্পল। কারো জানা আছে কি EDTA? मतलब 5 বা 6 5 বছর এরকম করে বললে তো হবে না, যে কোনো একটা কনফার্ম বলতে হবে যে কত। স্যার মনে হচ্ছে 6। ইয়েস। তো EDTA ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ হেক্সাডেন্টেড লিগেন্ড, ওকে। ये जो पॉलीडेंटेड है हेक्साडेंटेड, ठीक है ना। अच्छा, क्यों तुम्हारा हेक्साडेंटेड है, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर थोड़ा दिखा दे रहा हूँ तुम लोग। EDTA का ब्लैंक स्पेस में चलता, हाँ ये ठीक। EDTA तुम देखोगे तो ना उसका स्ट्रक्चर जनरली इथिलीन डायमीन टेट्राएसिडेट EDTA, इसका स्ट्रक्चर जनरली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें CH2 मतलब मिथाइल ग्रुप, दे विल जस्ट बॉन्ड CH2 इथिलीन डाइअमीन। सो फिर से तुमको एक एन आएगा, उसके बाद एसीटेट मतलब एसिटिक एसिड माइनस CH2C डबल, ठीक है ना। इसके बाद इसका डेंसिटी क्यों मतलब तुम्हारा 6 है, ऐसा नहीं कि इसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग साइट 6, ऐसा नहीं है। इसमें से 6 लोन पेयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 6 लोन पेयर कैन डोनेट, सो दैट इज़ द मेन थिंग। तो 6 लोन पेयर कहाँ से आएगा, देखो। एक तुम्हारा जो तुम्हारा मैं अलग कुछ पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजन से आएगा। স্যার বলছি লেফটে ওইটা CH2C+- হবে না? CH2C+- এটা লিখেছি তো। না না, পাশে ওই বাম দিকে। হ্যাঁ, সরি টেট্রা মানে 4টে অ্যাকচুয়ালি, ঠিক। सो এখান থেকে তোর আসছে একটা লোন পেয়ার फ्रॉम नाइट्रोजन, इधर से एक लोन पेयर, और ये जो तुम्हारा 4 है इधर से एक लोन पेयर, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से 6 लोन पेयर इट कैन डोनेट। समझ में आया कि नहीं, ये बोलो मेरे को, समझ में आया? বল কোনো কনফিউশন থাকে? হ্যাঁ দাদা। ঠিক আছে, मतलब if you write the CH2CO acetate group in details also, you can write it like that way also, CH2CO ऑक्सीजन, ओके, ऐसे ही तुम लिख सकते हो। सो लोन पेयर इधर से तुम बाहर आएगा। अच्छा, एवरीवन हैव अंडरस्टूड इट नॉट, व्हाई ADT इज हेक्साडेंटेड? समझ में आया कि नहीं, ये बोलो। आज पूरा केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, मेरे को खुद से उतना केमिस्ट्री पसंद नहीं है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना तुमको थोड़ा याद रखना होगा। मतलब लोन पेयर कितना डोनेट कर रहा है, समझ में आया कि नहीं, ये बोलो। हेलो एवरीवन कन्फार्म, करीना, अमृता, हाँ दादा। ये सबाई बुझते পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার।
ओके ठीक है, तो चिलेट, ये जो चिलेट फॉर्म हो रहा है, तो इससे दिस आर द ग्रुप ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच सबस्ट्रेट और लिगेंड प्रोवाइड 2 और मोर। इधर पे ईडीटीए में तो तुम तो देखा हो, इसमें 2 और मोर क्या है, तो 6 तुम्हारा डोनर ग्रुप है, मतलब लोन पेयर 6 है, मतलब डेंटिसिटी 6, ठीक है ना। सो दोज आर द चिलेट, मतलब ईडीटीए बहुत सारे ऐसा कंपाउंड है, मेटल है, उसके साथ मतलब ईडीटीए बाइंड करता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ चुके हैं चीज़, ईडीटीए के साथ मेटल कॉम्प्लेक्स का जो बाइंड होता है, ठीक है ना। ईडीटीए मेटल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे। ओके, सो दोज आर द थिंग्स। पॉलीडेंटेड, ट्राइडेंटेड, डाइडेंटेड, डेंटिसिटी तो तुमको याद रखना होगा, मैं ऑलरेडी बोल दिया। तो चिलेट समझ में आया ना, जब तुम्हारा एक मोनी मतलब पॉलीडेंटेड और मोर देन 2 ग्रुप, जब ऐसा कुछ डोनर और लिगेंड रहेगा, जब वो एक मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा, ठीक है ना, दोज आर द चिलेट, ठीक है ना, दोज आर द चिलेट। क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एक साइड भी काफ़ी है, मतलब एक कोऑर्डिनेटर साइड होगा तो वो भी चल जाएगा, बट चिलेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि मिनिमम प्रोवाइड 2 और मोर, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस कंपेयर टू आई मीन इनऑर्गेनिक एंड चिलेट, ठीक है। इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं कि मोर देन 1 नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बट ओनली 1 हो जाएगा तो उसको भी तुम इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के, मतलब ये जो कोबाल्ट के साथ वो बनाया वो तुम बोल सकते हो, एमोनिया मोनोडेंटेड था, हो गया। बट जब तुम चिलेट फॉर्म मतलब फॉर्म होगा तो उसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि उसमें जो लिगेंड रहेगा वो मतलब 1 से मतलब ज़्यादा उसका बाइंडिंग साइड और डोनर साइड, डोनर ग्रुप वो प्रेजेंट रहेगा। सो दैट इज़ द डिफरेंट। ओके, समझ में आया ना? कन्फर्म प्लीज एनीवन? कुछ कन्फ्यूजन है तो वो भी तुम बता सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं, बट कन्फर्म प्लीज वंस। হ্যাঁ দাদা বুঝতে পেরেছি। अच्छा, तो ओलेफिन टाइप, दिस आर द लुईस एसिड बेस, जो रिएक्शन जो कॉन्सेप्ट में मैं बताया, ठीक है ना। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ यूजर कैटलिस्ट। तो एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि एग्जाम्पल यूजर द कैटलिस्ट, ओलेफिन टाइप्स तुम्हारा जो होता है, ओलेफिन और एरोमेटिक टाइप बोथ कैन बी आई मीन ट्रीटेड लाइक अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा वो जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होगा उसमें क्या प्रेजेंट है कि तुम देखो कि दे विल एक्चुअली बाउंड बाय द हाइड्रोजन वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस डाइपोल इंड्यूस्ड, मतलब ये वाला चीज। सो दिस वैन डर वाल्स फोर्स की समझो, दोज आर एप्लीकेबल फॉर द ऑर्गेनिक। इसमें हम लोग क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो डोनर एक्सेप्टर ऑल दोस कॉन्सेप्ट विल बी टेकन प्लेस, मतलब इन मेटल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। बट ऑर्गेनिक जब तुम बताओगे देन दिस काइंड ऑफ फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स, अच्छा वैन डर वाल्स फोर्स ऑल दोस थिंग्स, दिस आर द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या होता है इसमें तुम्हारा एक पार्शियल चार्ज गेन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वैन डर वाल्स फोर्स की सम डिवाइन। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है, मतलब ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्सेस, सो दोज आर एक्चुअली फॉर्म बाय दिस काइंड ऑफ बॉन्ड, वैन डर वाल्स हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल इंड्यूस्ड। तो इसका अट्रैक्शन का जो एनर्जी है 3 KCl, मतलब किलो कैलोरी और पर मोल, ऐसा होता है। 3 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड डिस्टेंस, ये वाला तो ठीक है। एग्जाम्पल है, इसमें सारा डिफरेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जस्ट एग्जाम्पल याद रखो कि क्या क्या एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक के अंदर, क्या क्या एग्जाम्पल है वो तुम देखो। ड्रग और कैफीन कॉम्प्लेक्स, उसमें हम लोग बेंजोकेन, बेंजोकेन ये ड्रग पता है ना, बेंजोकेन क्या होता है? दादा लोकल एनेस्थेटिक। तो बेंजोकेन और कैफीन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, वो दिस इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, एसिडिक ड्रग लाइक बेंजोकेन, प्रोकेन, दे विल जस्ट बाइंड विद द कैफीन एंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या मैकेनिज्म है, डाइपोल डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कैफीन कार्बोक्सिल ग्रुप, इंटरेक्शन ऑफ द नॉन पोलर पार्ट, ठीक है, नॉन पोलर पार्ट के साथ। तो कैफीन में तुम्हारा नाइट्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव हो गया, और ऑक्सीजन तुम्हारा जो बेंजोकेन था उसमें पार्शियल नेगेटिव, तो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, डाइपोल टाइप से एक बॉन्ड इधर पे फॉर्म होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना, कैफीन और बेंजोकेन। जस्ट बस ये एग्जाम्पल तुम थोड़ा याद रखो, वो भी काफ़ी है इसमें। और पॉलीमरिक कॉम्प्लेक्सेस जब होगा उसमें क्या होगा,
ना पॉलीमरिक पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, इसमें थोड़ा चार्ज तो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट रहेगा ऑक्सीजन का। क्यों क्यों रहेगा आइडिया है? पॉलीमर में ये जो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, इसमें क्यों तुम्हारा प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन? एनी आइडिया? কারণ দাদা যে ড্রাগগুলো আছে ওদের স্ট্রাকচারে কি কোনো মানে নিউক্লিওফিলিক সেন্টার আছে যেটা দিয়ে বন্ড হতে পারে? ना ना, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई द पॉलीमर्स हैव द न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन। ड्रग का बात तो मतलब बाद में आएगा, मतलब वो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, दैट इज डिफरेंट। सो इसलिए तुमको जानना पड़ेगा कि पॉलीथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का प्रॉपर्टी क्या है, ये तुमको जानना जरूरी है, ठीक है ना। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, ये नाम सुन के क्या तुमको लग रहा है बोलो तो? पॉलीथिलीन ग्लाइकोल ये नाम सुन के इसमें क्या प्रेजेंट होगा? पॉलीथिलीन ग्लाइकोल इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, कुछ आइडिया है तुम्हारा? हाइड्रोजन बॉन्ड থাকবে মানে हाइड्रोजन बॉन्ड तो থাকবেই, but if you see polyethylene তাহলে glycol, ইথিলিন থাকবে। हाँ alcohol, some alcoholic group will be present, okay? ठीक है ना। तो इसमें प्रेजेंट रहेगा ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल और तुम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज भी बताओगे, उसमें तुम्हारा लोन पेयर तो ऐसा तुम नहीं रहेगा उसमें, बट स्टिल कार्बोक्सी मिथाइल स्ट्रक्चर जो रहेगा, बट वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कार्बोक्सी मिथाइल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बट उसमें भी तुम्हारा एक मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड तो तुम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो जितना भी तुम्हारा पॉलीमर रहता है ना, वो जनरली एक पॉलीसेकेराइड इन नेचर पॉलीमर, तो जिसमें तुम्हारा पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड रहेगा तो उसमें तो तुम्हारा ग्लूकोज जैसा तो स्ट्रक्चर उसमें रहेगा, ओ आर मतलब आर में जो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर नहीं देखो, मतलब ऐसा जो होता है उसका स्ट्रक्चर तुम सोचो, ऑक्सीजन इसमें रहेगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुम देखे हो तो इसमें तुमको फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज को हम लोग जो जब लिखेंगे ऐसा, ठीक है ना, तो उसमें तुम देखोगे बहुत सारा ऑक्सीजन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, बहुत सारा ऑक्सीजन ग्रुप, ठीक है ना, ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं बोले बात? तो ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ग्लाइकोल, सॉरी पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बोलो? हेलो, হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ স্যার। दोज ऑल आर पॉलीसेकेराइड। सो पॉलीसेकेराइड में तो ऑब्वियसली वो जो ग्लूकोज का जो नेचर वो वाला तो रहेगा ना इसमें, ठीक है। तो दैट्स वाई दे हैव सम काइंड ऑफ आई मीन न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन ग्रुप, ओके, like polymer. So they will form the with some drug will be there, tannic acid, salicylic acid, phenol will be there, so they will form the complexes. I mean न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन मतलब क्या है, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ड्रग में ऑब्वियसली सम पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, तो फॉर्म करेगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दोज ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड हियर व्हाट हैपन ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसके अंदर एक तुम्हारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट उतना प्रीडोमिनेंट नहीं है जो तुम्हारा प्रीडोमिनेंट था लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट फॉर इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, ओके। अच्छा, पिक्रिक एसिड का तुम स्ट्रक्चर तुम जानते हो? पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो इधर पे है ऑलरेडी, एनीवे। अच्छा, तो पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स है, दोज आर ऑल कम्स अंडर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली, ओके। पिक्रिक एसिड का यूज़ किस में होता है, कुछ आइडिया है? पिक्रिक एसिड एंटीसेप्टिक के अलावा पिक्रिक एसिड यूज, एनी आइडिया? पिक्रिक एसिड का मतलब यूज तुम फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किधर किधर तुम कर सकते हो। एंटीसेप्टिक तो इसमें है ही ऑलरेडी। हाँ बोल। তো মনে হয় অ্যালকালয়েডে কোনো পিক্রিক অ্যাসিড টেস্ট হয়। एस्ट्रिंजन तुम सुने हो? एस्ट्रिंजन क्या होता है? एस्ट्रिंजन
व्हाट इज एस्ट्रिंजेंट, एनी आइडिया व्हाट इज एस्ट्रिंजेंट? প্রোটিন প্রেসিপিটেট করে না অ্যাস্ট্রিনজেন্ট। হ্যাঁ, টিস্যুটাকে শ্রিঙ্ক করবে, ওটাকে স্কুইজ করে দেবে যাতে করে কিনা কোনো এক্সটার্নাল ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এনিথিং ক্যান এন্টার ইনটু দ্য পোর অফ আওয়ার স্কিন। অ্যাস্ট্রিনজেন্ট টিস্যু प्रोटीनটাকে एक्चुअली स्क्वीज का एस्ट्रिंजेंट इन नेचर। ओके, सो ये तुम्हारा जो है एंटीसेप्टिक एस्ट्रिंजेंट, सो पिक्रिक एसिड का नेचर है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा बुटेशिन दैट इज एनास्थेटिक इन नेचर। सो इसका जो ऑइंटमेंट तुम देख सकते हो, तुम सर्च करोगे और मार्केट में बुटेसिन पिक्रेट तुम्हारा एक होता है ऑइंटमेंट, तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। बुटेसिन तुम्हारा जो ऑइंटमेंट है बुटेशिन ऑइंटमेंट, तो एक एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुमको भी खुद से कुछ ढूंढना पड़ेगा कि पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस और क्या क्या हो सकता है। सारा तो मैं इधर पे प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा ना, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल मैं जो बताया तो याद रखो, बट खुद से भी तो थोड़ा ढूंढो। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मतलब दिस इज़ नॉट ऑफ टॉपिक ऑल दो, कि ट्राई टू आई मीन मेक द हैबिट टू गो थ्रू द मार्टिन बुक ऑल्सो। मार्टिन लिबरमैन लैक्समैन तो ठीक है, इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो मार्टिन बुक है ना, ये भी तुम पढ़ना स्टार्ट करो जब तुम्हारे पास 3 मंथ्स बचा हो, मतलब एक्चुअली रहेगा, तब तुम ये सारे बुक फॉलो नहीं कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास टाइम है तो थोड़ा थोड़ा ये सारे चीज़ ना फॉलो करो। और कैसा पढ़ना होगा मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ। एक बेसिक आइडिया है, इफ़ यू ट्राई टू स्टडी एनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड बुक फॉर द जीपेट और नाइपर पर्पस, व्हाट इज़ द मेकानिज्म, व्हाट इज़ द आई मीन मेन कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये बता रहा हूँ, ये अच्छे से तुम याद रखो। मेरे पास है एक्चुअली कोलोजी का क्या है ना, देखो केडीटी और तुम्हारा जो मार्टिन लिबरमैन लैक्समैन कोकाते, और उसमें विल्सवर्थ गिलबर्ट और तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एक है बुक अलगट स्वामी। ये बुक जो है ना, इसमें इतना थ्योरी है, ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग। जब एग्जामिनर होगा ना, वो भी उतना लाइन नहीं पढ़ेगा, वो जनरली उतना लाइन नहीं पढ़ेगा, तो उसका ध्यान कहाँ पे होता है तुम पता है? जो चार्ट जो होता है, जो डायग्राम होता है, ठीक है ना, कुछ तुम्हारा कार्व है मतलब ग्राफ है, तो वो सारा चीज़ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केडीटी में तो बहुत सारा ऐसा टेबल तुमको मिल जाएगा, और वो क्या कैसे लिखा है ऐसे करके प्लस 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 प्लस, मतलब इसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है, 2+ से ही समझ आएगा, मतलब एक कंपैरिजन है ड्रग का, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, और तुम्हारा मार्टिन से भी मैं तुमको थोड़ा दिखा रहा हूँ। ये जो बुक ना पढ़ना स्टार्ट करो, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। डोंट लिव द मीटिंग, সঞ্চিতা হচ্ছে লিভ করে গেল মিটিং। যাই হোক, আমি বলছি একটা জিনিস, যেটা তোরা জাস্ট কেয়ারফুলি শোন, কারণ इफ़ यू डोंट बिल्ड अप द हैबिट और स्टडी द स्टैंडर्ड फ्रॉम राइट नाउ, वो लास्ट में जाके पॉसिबल नहीं है, लास्ट में जाके बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो देखो, एक मैं एग्जांपल तुमको दिखा रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स सेशन है, मैं भी ये जो बुक है ना, इधर से ही मैं मतलब फॉलो करता हूँ। ये कुछ मतलब हाइट करने का बात नहीं है, ये इतना स्टैंडर्ड बुक है, इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है तुमको, मैं तुमको बस पहले से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। वेट इधर से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये जो लिखा है वो तुम छोड़ दो। देखो, ये क्लासिफिकेशन, ये वाला टेबल इम्पोर्टेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं ऑलरेडी इसमें इसको पीपीटी में दिया हूँ, तुम देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जस्ट ये वाला कैल्शियम आयन सीक्वेस्टेड बाय द इथिलीन डायमीन, जो तुम्हारा टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है ना, टेट्रा एसिटिक एसिड। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर, सो दिस इज वन टाइप्स ऑफ तुम्हारा क्लैथेट्स और तुम्हारा चिलेट। तो ये जो एग्जाम्पल है वो तुमको पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा। ये मैं बोल रहा हूँ जो की कॉन्सेप्ट एक टेबल है, बस इसको तुमको पढ़ने का जरूर नहीं, इतना जो तुम्हारा टेक्स्ट है पढ़ने का जरूर है। जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा टेबल है, इसको पढ़ने का जो आदत बनाओ। इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर मार्टिन, केडीटी ऑल्सो, कोकाते फॉर कॉग्नोसी कोकाते ऑल्सो, ठीक है ना। तो यही होता है, मतलब तुम जितना डायग्राम स्ट्रक्चर इसको तुम अच्छे से याद रखोगे ना, वही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ये वाला देखो कि इधर पे कुछ एजेंट है, कॉम्पाउंड्स दैट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द एजेंट, एक कॉलम, तो तुम इसको याद रखो। ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये वाला टेक्स्ट इतना तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं तुमको बोल रहा हूँ इतना पढ़ने का। हाँ, तुम पढ़ पाओगे तो अच्छा है, बट इफ़ यू नॉट आई मीन गो इन टू दैट ऑल्सो, दैट इज़ फाइन। समझ में आया ना मैं क्या बोला हूँ? हेलो, समझ में आया? कुछ नहीं है बोलो ये चीज़।
तुमको दिख जाएगा, हर जो स्टैंडर्ड बुक है ना, किसी ना किसी बुक में तुमको दिख जाएगा ऐसा कुछ एग्जाम्पल, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ऑलवेज ट्राई टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। ये तुम्हारा एक देखो, इसमें तुम्हारा क्लैटथ्रेड का एक एग्जाम्पल है और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोक्विनोन का, ठीक है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म टू द हाइड्रोजन हाइड्रोक्विनोन। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में एमसीक्यू में वो तो स्ट्रक्चर नहीं देगा, मतलब इसका चांस कम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं देगा, बट चांस कम है। बट तुम एग्जाम्पल जस्ट याद रखो ना, उसमें ही तुमको फ़ायदा है। और क्या समझ में आया कि नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक को कैसे तुमको पढ़ना चाहिए। और तुम एक चीज़ मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अभी तक हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ मॉड्यूल्स नहीं है, वो बात सही सच है। बट जिधर पे भी तुम देखोगे ना कुछ मॉड्यूल्स वगैरह, वो जो मॉड्यूल्स है ना, तो ये स्टैंडर्ड बुक से ही उठाता है और कुछ नहीं। ये स्टैंडर्ड बुक का जो स्ट्रक्चर है, जो टेबल है, उसको ही वो लोग जस्ट कॉपी पेस्ट करता है उसका, मतलब आप उसका खुद का हिसाब से, ठीक है ना। कुछ उन्होंने खुद से कुछ नहीं लिखता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जस्ट गो थ्रू द टेबल, द पिक्चर, डायग्राम फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक। समझ में आया कि नहीं बोलो, जस्ट थर्ड रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड, ओके। और तुम्हारे पास नहीं होगा तो मेरे को बोलना, मैं भेज दूंगा, वो दिक्कत नहीं। मेरे पास बहुत सारा स्टैंडर्ड बुक है, नॉट ओनली रिलेटेड टू द फार्मा, मतलब फार्मास्यूटिक्स, हर एक का ही है, ठीक है। ठीक है, आई गेस तुमको समझ में आ गया। मैं थोड़ा इसको पैकअप जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 12:20 हो गया। अच्छा इसलिए मैं वो बोल रहा कि पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स के तुम खुद से देखोगे वो स्ट्रक्चर कुछ उसमें है कि नहीं, ठीक है। तो बुटेसिन ये जो कंपाउंड हो गया। अच्छा इसके बाद क्वीन हाइड्रोन तुम देखो इसमें क्या होता है, देखो। अच्छा और एक चीज़ एक बार देख लो कि पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जो तुम ड्रग यूज़ करोगे तो वो हो सकता है एक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जब तुम यूज़ करोगे एक स्ट्रॉन्ग बेस तो बन जाएगा सॉल्ट, बट वी नीड द कॉम्प्लेक्सेस, सो दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ द वीक बेस एंड यू नो इट वेरी वेल कि दोज आर द मतलब ड्रग लाइक बुटेसिन ऑल्सो तुम्हारा वो जो क्या बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स ऑल्सो वीक बेस इन नेचर, ठीक है। अच्छा बुझे पेरेছে, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल्सो, ओके। Local anesthetics also they are generally they are weak base in nature, ठीक है। अच्छा क्वीन हाइड्रोन जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें क्या है ना, तुम्हारा ओवरलैपिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। तो इसमें बेंजोक्विनोन एक ड्रग है और हाइड्रोक्विनोन है, ठीक है। तो हाइड्रोक्विनोन एंड बेंजोक्विनोन दे विल फॉर्म द क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। तो एग्जाम्पल एक है तुम्हारा ये हाइड्रोक्विनोन एंड बेंजोक्विनोन, ये पता है एग्जाम्पल किसका है, हाइड्रोक्विनोन और बेंजोक्विनोन। ऑल ऑल्सो ना ट्राई टू कोरिलेट द टॉपिक, मतलब तुम अभी फ्यूटिक्स पढ़ रहे हो बट इसी के साथ तुमको थोड़ा कोलॉजी केमिस्ट्री भी तुम कोरिलेट कर रहे हो, ये भी अच्छा है। तो हाइड्रोक्विनोन क्या है, आइडिया है व्हाट इज हाइड्रोक्विनोन? हाइड्रोक्विनोन आइडिया नहीं है ना। और बेंजोक्विनोन आइडिया है तुम्हारा, व्हाट इज बेंजोक्विनोन? नहीं है तो बता दो, ठीक है ना, कुछ दिक्कत नहीं। और तुम ट्राई भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा क्या होगा तुम खुद से बता भी सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं उससे। বেঞ্জোকুইনোন এ সারা হাইড্রোকুইনোনের মেবি কোনো একটা টপিক্যাল ইউজ হচ্ছে। हाँ मैं बोलছি बेंजोक्विनोन से तुम हाइड्रोक्विनोन बन सकते हो। और हाइड्रोक्विनोन जनरली क्या होता है, कुछ आइडिया है हाइड्रोक्विनोन? तो हाइड्रोक्विनोन की অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টি আছে। হাইড্রোকুইনোন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হ্যাঁ, বাট এটা তুই নর্মাল হাইপার পিগমেন্টেশনও ইউজ করতে পারিস। আমাদের স্কিলে মেলাজমা মেলানিন হাইপার সিনথেসিস যখন হয় ওটাকে হাইপার পিগমেন্টেশন বলে, ওখানে একটা মেকানিজম রয়েছে দ্যাট ইজ ফর পিপিআর, ঠিক है ना, পিপিআর সাইকেল ওটাকে বলে। তো দেন ইউ ক্যান ইউজ দ্য हाइड्रोक्विनोन यूज टू रिड्यूस द हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करता है हाइड्रोक्विनोन, ठीक है ना। हाइपर पिगमेंटेशन को करता है, ये ब्लॉक करता है मेलानोसाइट जो होता है, मेलानोसाइट से तुम्हारा केराटिनोसाइट से मेलानोसाइट्स में तुम्हारा मेलानिन का ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, मेलानिन तो तुम जानते हो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो केराटिनोसाइट से जब तुम्हारा मेलानिनोसाइट ये जो ट्रांसफ़र जब होता है तो उसको ब्लॉक कर देता है हाइड्रोक्विनोन कभी कभी। तो
मेन थिंग्स इज दैट यू हैव टू रिमेंबर हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है तुम्हारा हाइड्रोक्विनोन, ओके, क्विनहाइड्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा और क्या क्या बचा है? अच्छा मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा, ये जो एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड एप्लीकेशन तो ऑलरेडी हो गया, ये मैं नेक्स्ट क्लास बता दूंगा, ठीक है ना। प्रोटीन बाइंडिंग के साथ साथ, प्रोटीन बाइंडिंग मैं नेक्स्ट क्लास बता दूंगा उसके साथ साथ। आज जस्ट मैं एग्जांपल और थोड़ा बता रहा हूँ कि इसके बाद जो होगा इंक्लूसन कॉम्पाउंड। तो इंक्लूसन कॉम्पाउंड मतलब क्या है? उसमें कुछ केज रहेगी, नेचर केज रहेगा। केज तुम समझ सकते हो ना, उसके अंदर वो एंट्रैप होगा, उसके अंदर जाके एंट्रैप हो जाएगा केज, इंक्लूसन कॉम्पाउंड, ठीक है। तो ट्रैप्ड इनसाइड द लैटिस ऑफ द केज, दैट इज द इंक्लूसन कॉम्पाउंड। उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? चैनल टाइप। तो चैनल टाइप का एग्जाम्पल स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन और यूरिया मिथाइल अल्फा लिपोलेट। इधर पे तुम्हारा यूरिया इज द केज और द होस्ट, और इधर पे स्टार्च इज द होस्ट। স্টার্চ আয়োডিন সলিউশন, এটা তোরা কোথাও করেছিস? এটা এই জিনিসটা কোনো আইডিয়া আছে? স্টার্চ আয়োডিন সলিউশন, দ্যাট কনসেপ্ট অঙ্কনা, স্টার্চ আয়োডিন এটা কোনো আইডিয়া আছে তোর? স্টার্চ আয়োডিন সলিউশন? না স্যার, এই নিয়ে আইডিয়া নেই। হ্যাঁ, স্টার্চ আয়োডিন সলিউশনটা জেনারেলি উই ইউজড টু আইডেন্টিফাই দ্য স্টার্চ whether it is actually starch or not, ঠিক আছে। কারণ if you give the iodine solution in the starch, they will react and produce the blue color, black or blue color, like that, black or blue color। तो स्टार्च आइडेंटिफिकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं ये सॉल्यूशन, मतलब एक्चुअली वी ऐड द आयोडीन उसमें, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है ना। आयोडीन दे विल रिएक्ट विद द स्टार्च and they will form that starch iodide, that complex triiodide ions, and in the result we will actually found the deep blue color compound. But if there is no starch is present, so color will remain as the brownish yellow ही प्रेजेंट हो गया। तो एक टेस्ट है, स्टार्च का टेस्ट है, ठीक है ना, वही मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं। आयोडीन टेस्ट ऑफ स्टार्च तुम देखोगे, जब तुम्हारा नेगेटिव टेस्ट आ जाएगा मतलब वो कलर येलो ही प्रेजेंट रहेगा, बट जब उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, स्टार्च आयोडिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तब तुमको दिखेगा एक ब्लू और डीप ब्लैक टाइप्स में, तो पॉजिटिव टेस्ट है, स्टार्च इज प्रेजेंट देयर, ठीक है ना। समझ में आया ना ये चीज़? हेलो, হ্যাঁ স্যার, এইটা জানতাম যে আয়োডিন টেস্ট মানে করা হয় স্টার্চ প্রেজেন্সের জন্য, কিন্তু ওইটা স্টার্চ ওইটাই আয়োডিন বললাম। সলিউশন সলিউশনটা মানে না ওইটা সলিউশনটা ওটাই বলতে চাইছি, মানে যে ওখানে কোনো আইডিয়া আছে নাকি এটা ইউজটা কীরকমভাবে হয়, এইটাই। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, ঠিক আছে। আর ইউরিয়া মিথাইলটা জেনারেলি মানে কখন ইউরিয়া একটা সাইকেল আমরা যখন পারফর্ম করি, দেয়ার ইজ সাম কাইন্ড অফ ইউরিয়া সাইকেল উই হ্যাভ টু পারফর্ম, দেন উই ক্যান চেক। বাট নর্মাল ইফ ইউ সে মানে লিপোলেট অ্যান্ড অল দোজ থিং, এখানে একটা কনসেপ্ট আছে কি ফার্মাসিউটিক্যালে আমরা মেনলি 11 কেমিক্যালস মানে যেগুলো হচ্ছে তোর এগ্রিকালচারে ক্রিস্টালাইন সলিড কিছু হয়, মানে লাইক ইউরিয়ার নেচার তো জানিস, ইউ হ্যাভ নো দ্য নেচার অফ ইউরিয়া, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান কাইন্ড অফ ফার্টিলাইজার। So for the fertilizer point of view, we can use that thing, okay? Lipolate and all those things, agrochemicals to preparation, all those things, okay? But generally they use in the fertilizer also, okay? Urea methyl alpha lipolate, okay? আচ্ছা, আর এই কম্পাউন্ডটার তোর একটা প্রবাবলি দে হ্যাভ সাম কাইন্ড অফ অ্যান্টি এজিং প্রপার্টি অলসো, সামটাইমস অ্যান্টি এজিং, ठीक है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। ओ ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल याद रखो, यूरिया मिथाइल अल्फा लिपोलेट। अच्छा, लेयर टाइप में जो लेयर बाय लेयर दे विल जस्ट फॉर्म। इधर पे होस्ट तुम्हारा क्या क्या है? क्ले, बेंटोनाइट, मोरिलेटर एंड मोरिलाइट, एंड गेस्ट रूप से मतलब जो एक्चुअली उसके अंदर इंटरैप हो रहा है, इट कैन बी अल्कोहल, ग्लाइकोल, हाइड्रोकार्बन, ओके। clad threads, sorry, that is the layer types, and clad threads like the cage of structure, all are clays, मतलब ये जो इंक्लूसन कंपाउंड ये लैटिस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है और फिर केज के अंदर। तो ये सारा जो लैटिस है प्रेजेंट, मतलब तुम्हारे
स्टार्च का एक लैटिस है, हो सकते हैं कुछ तुम्हारा जो बेंटोनाइट का लैटिस है, बट अभी एक केज के अंदर प्रेजेंट होगा। सो वारफरिन सोडियम, तो वारफरिन का क्या काम है? वारफरिन एंटीकोआगुलेंट। यस, एंटीकोआगुलेंट। ये तो ओरल एंटीकोआगुलेंट। यस। तो वारफरिन सोडियम हम क्यों ऐड करते हैं? मतलब वारफरिन तो था, बट वारफरिन सोडियम क्यों हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं? इसलिए तुमको जानना जरूरी है कि द सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। এটা তো জানা উচিত তোদের, why salt form is important। সলিউবিলিটি ইনক্রিজ করে। Exactly। এটা তো সলিবিলিটি এনহ্যান্স করে। If you increase the solubility, obviously viability can increase। So general concept is that if you add the salt, so they will ionize better, solubility will be better। So that is the main concept, मतलब basic concept, ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ तुम ये वाला जो पढ़ा तो so warfarin sodium hydroquinone form some kind of hydrogen bonding, so those are example of the clad threads or cage like structure। Okay, अच्छा, last that is the monomolecular inclusion complex, और इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं पहले बता रहा था, साइक्लोडेक्सट्रीन, ठीक है। साइक्लोडेक्सट्रीन और साइक्लोडेक्सट्रीन के मतलब वो अंदर हम लोग एस्पिरिन ड्रग यूज़ करते हैं, मतलब एस्पिरिन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इंटरप्ट करते हैं कि उसका सॉलिबिलिटी वायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सो साइक्लोडेक्सट्रीन आर द साइक्लिक ऑलिगोसैकेराइड कंटेन, ये वाला पॉइंट याद रखना क्योंकि फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू दोज आर इंपॉर्टेंट। सो साइक्लोडेक्सट्रीन इज द ऑलिगोसैकेराइड। अच्छा, व्हाट इज ऑलिगोसैकेराइड? व्हाट इज ऑलिगोसैकेराइड आइडिया? 2 to 9 ইউনিট অফ সুগার যে কার্বোহাইড্রেটে প্রেজেন্ট আছে। আচ্ছা, আর অন্য কেউ কিছু? দাদা এই 100টা মনোস্যাকারাইড ইউনিট অবধি যদি লিংকেজ হয় তখন অলিগোস্যাকারাইড বলে, তার থেকে ভালো করে বলো, ভয়েসটা একটু লো আসতো, ভালো করে বল। দাদা বলছিলাম যে যদি 100 অবধি যদি মনোস্যাকারাইড ইউনিটস যদি বাইন্ড করে তাহলে অলিগোস্যাকারাইড, তার বেশি হলে আবার পলিস্যাকারাইড হবে। হ্যাঁ, গ্লাইকোসাইড রিং উইল বি দেয়ার, ঠিক আছে। তো অলিগোস্যাকারাইডের মধ্যে ডাইস্যাকারাইড এগুলো সবই আসছে, তো 2 to 10 monosacharide will be present and glycoside linkage। Okay, so those are generally the oligosaccharide। Okay, so minimum 6 D-glucopyranose unit attached by the alpha 1 for linkage, ठीक है। so this is the important here, like hydrophilic exterior, hydrophobic interior। मतलब देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर, तो ये क्यों है, कुछ आइडिया है तुम्हारा? मतलब बेसिक तुम आइडिया कर सकते हो। और इसमें इसके अंदर जो ड्रग है, ये ड्रग तुम ऐसे बाहर मैं लिख रहा हूँ, इसको तुम पॉइंट आउट कर सकते हो कि क्या ड्रग है इसमें। COOH ये क्या है ड्रग? हेलो, ये बहुत पॉपुलर है, मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं ना, এটা অ্যাসপিরিন কি? হ্যাঁ বল। অ্যাসপিরিন দাদা, অ্যাসপিরিন হবে। তা আমি তো অলরেডি বললাম প্রথমেই, তাহলে তোরা তো বলতে পারছিস না এটা। সো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যাসপিরিন। এবার দেখ ব্যাপারটা কি হয়, হোয়াট হ্যাপেন না, why inside that this is hydrophobic interior, because हाइड्रोफोबिक मतलब जो एस्पिरिन हो ना, वो जनरली हाइड्रोफोबिक मतलब उसका वाटर से थोड़ा दिक्कत होता है, हाइड्रोफोबिक है, तो इसलिए तो उसका सॉलिबिलिटी ज़्यादा नहीं है ना, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंटली हाइड्रोफोबिक, क्योंकि उसके अंदर एक जो एस्टर ग्रुप तुम COCH3 जो ग्रुप है तुम्हारा, एस्टर जो ग्रुप है CO ग्रुप, so due to that, so this is very hydrophobic in nature। But if it is hydrophobic in nature, so how you can improve the solubility or bioavailability? So that's why you can entrap the aspirin in the hydrophobic interior, so that there is no compatibility issue, no instability issue। But बाहर में तुम्हारा जो एक्सटीरियर है साइक्लोडेक्सट्रीन का, that is hydrophilic in nature। So वो अच्छे से वो क्या बोलते हैं, पानी के साथ मिक्स हो जाएगा,
और स्लोली उधर से ड्रग रिलीज होगा, ठीक है। अच्छा इधर भी तो लिखा था इंटर एक्सपेंड में तो जो है तो दैट इज़ द मतलब इम्पॉर्टेंट कि हाइड्रोफोबिक जो ड्रग होता है, लो सॉल्युबल जो ड्रग होता है, उसको तुम इंटीरियर में डालोगे क्योंकि उसका रीजन ऐसा है, इनकॉम्पेटिबिलिटी इशू नहीं है। और बाहर वाला जो एक्सटीरियर है साइक्लोडेक्स्ट्रिन का, दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। तो अच्छे से वो वायबिलिटी और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो समझ में आया ना जो हम लोग आज डिस्कस किए? किसी का कुछ डाउट है बोलो। और लास्ट वाला जो पोर्शन है उसका तुम्हारा एनालिसिस और उसके साथ साथ प्रोटीन बाइंडिंग आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मेथड ऑफ एनालिसिस एंड प्रोटीन बाइंडिंग। तो इनऑर्गेनिक, चिलेट्स, ओलेफिन, एरोमेटिक, ड्रग कॉम्प्लेक्स, पॉलीमर, पिक्रीटिन, हाइड्रोजन, चैनल लेयर क्या था मॉल, ठीक है। और एग्जाम्पल खुद से भी ढूंढो, मतलब तुम लोग ट्राई टू मतलब कलेक्ट डेंटिसिटी का मतलब चार्ट मेरे से मतलब मैं ढूंढूंगा, एक बार मिल जाए तो तुमको शेयर कर दूंगा, ओके। समझ में आया कि नहीं बोलो? हेलो, কিছু ডাউট থাকলে বল, প্রবলেম নেই, আদারওয়াইজ উই ক্যান ক্লোজ দ্য সেশন। বোঝা গেছে তো?